Fine. So we'll start with punctuations and we'll go into details, right? And likewise, we'll have one topic at a time and we'll know what to cover. So why use punctuations? Punctuation marks are used to give a sentence a proper meaning. Fine. So if I write a sentence without punctuation marks, so you will not know, or rather you will not understand the meaning of it. That is, the reader is not going to understand the meaning of a sentence. So unless and until I tell you where to pause or where the sentence ends, or use inverted commas or use exclamation mark or even question mark, then only you as a reader will be able to understand a written sentence. So how are punctuation marks useful? They help in the organization of a sentence. They distinguish speakers. For example, if I'm talking about 2-3 speakers and I'm quoting one speaker after the another, then I will have to use punctuation marks, inverted commas, right? I will show you how. Indicate pauses. So when we use comma, we are actually telling the reader that we are pausing here, or rather there's a break in the sentence, right? And if you want to express extreme emotions or feelings, then we can use exclamation mark. If you want to ask a question, then we can use a question mark. So all these things come under what? They come under punctuations. Fine, got it? Yes. Okay. So first we'll start with quotation marks. That is double inverted commas. So there are a few basic rules when it comes to using a quotation mark. First is use a double quotation marks to set off a direct word-to-word quotation. For example, if I want to quote you, Neha said this, right? So what I'll do is Neha said, what I'll say is Neha said, and then I'll quote whatever you have said in inverted commas. Yes, what I'll do is I'll first of all quote you and then say Neha said this, right? So inverted commas open and then inverted commas close and then there's a full stop. So how do we use it? Sir, inverted commas are mostly we can see where the authors give definition of something. Yeah, in fact, we are quoting the author word to word. मतलब हम उसके पूरे शब्दों को ज्यों का त्यों कोट कर रहे हैं, है ना? अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूँ नेहा ने ऐसा बोला और जो तुमने बोला उसकी समरी बता सकता हूँ, तब इन्वर्टेड कॉमर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, राइट? तो कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड इन द सेकंड सेंटेंस. सॉरी, इसमें हाँ, ये अभी एग्जांपल बताया गया है कि जैसे कि सही इसका क्या है, आई होप यू विल बी देयर, यानी कि उस बंदे ने जैसा बोला उसने वैसा कोट कर दिया और उसके बाद फिर ही सेड. और इनकरेक्ट क्या है कि ही सेड दैट. ही सेड दैट तो क्या होगा, फिर कोटेशन मार्क्स की जरूरत ही नहीं है. ही सेड दैट ही होप दैट ही वुड बी देयर. तो ये फिर हम ये बता सकते हैं सेकंड पर्सन में कि हमने उसको ऐसा करके उसको समराइज कर दिया. नेक्स्ट जो रूल है कि कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर कंपोनेंट सच एज चैप्टर टाइटल्स, बुक्स, इंडिविजुअल एपिसोड्स, टीवी या कोई टाइटल्स को भी हम लोग कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं. इस चीज के टाइटल्स, टाइटल ऑफ अ बुक, इंडिविजुअल एपिसोड, सीरियल वगैरह होते हैं ना, ऑफ अ टीवी सीरीज, सॉन्ग्स फ्रॉम ब्रॉडवे की मतलब किसी सॉन्ग का नाम होता है ना, जैसे आमिर खान का कोई सॉन्ग है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज कर सकते हैं. टाइटल ऑफ कोई एसे, बुक वगैरह, तो ये सारी चीजें भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज कर सकते हैं. तो पहला रूल क्या है कि अगर हम किसी को डायरेक्ट कोट करना है वर्ड टू वर्ड तब हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं. दूसरा, हम किसी भी टाइटल अगर हमको यूज करना है तो भी हम कोटेशन मार्क्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखो, एक सॉन्ग का नाम है कैमिल, तो हमने इसको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको कोट कर दिया, तो यहां पर भी यूज कर सकते हैं. तीसरा रूल क्या है, पीरियड्स यानी कि फुल स्टॉप एंड कॉमर्स ऑलवेज गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स के बाहर नहीं आता. अब जैसे देखो ये he yelled hurry up, तो कॉमा कहाँ है, ये सर आफ्टर yelled. हाँ, सॉरी देखो, जब हम लोग किसी को कोट कर रहे हैं ना तब की बात हो रही है, तो ये कॉमा कहाँ आता है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर. तो कोई रूल क्या है, पीरियड्स एंड कॉमा आर ऑलवेज, दे ऑलवेज गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स.
मतलब उसके अंदर जैसे कि डोंट वॉक, कॉमा, तो कॉमा कहाँ गया? कोटेशन मार्क के अंदर। हरी अप, फुल स्टॉप कहाँ गया? कोटेशन मार्क के अंदर। तो जो कोटेशन मार्क से संबंधित जो चीज है, तो उसके अंदर का जो कॉमा और फुल स्टॉप होता है वो कोटेशन मार्क के बाहर नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये पूरा लिखा और कोटेशन मार्क के बाहर फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। यस सर, ये समझ में आ गया? तो ये कि हम किसी को अगर डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करना है तब यूज करते हैं, किसी चीज का टाइटल, चैप्टर टाइटल, बुक का टाइटल, सॉन्ग का टाइटल यूज करना है तो हम यूज करते हैं। और तीसरा, जब कॉमा और जो फुल स्टॉप जो कोटेशन मार्क से संबंधित है वो हर समय कोटेशन मार्क के अंदर आता है, अंदर। ये दो कोटेशन मार्क्स है ना, डबल के अंदर आता है। जैसे फुल स्टॉप, कॉमा वो हो गया और फुल स्टॉप ये हो गया। 3 रूल समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन। अब मान लो मैं किसी को कोट कर रहा हूं और उसके अंदर एक और बंदे को कोट कर रहा हूं, मतलब डबल लोगों को कोट कर रहा हूं, तो अंदर वाले में मैं सिंगल इन्वर्ट कॉमास यूज करूंगा ये, और बाहर वाले में मैं डबल इन्वर्ट कॉमास यूज करूंगा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इन अ टाउन आउटसाइड आगरा आई सॉ टूरिस्ट गो होम रिटन ऑन द वॉल, तो टूरिस्ट गो होम जो है ये मैंने वर्ड टू वर्ड कोट किया, लेकिन क्योंकि मैं अपने कोट के अंदर कोट कर रहा हूं तो इसको मैं डबल में नहीं, सिंगल इन्वर्ट कॉमास में रखूंगा। ठीक है ना? यस। इन मतलब कि जैसे आगरा में अगर लिखा है किसी दीवार पे कि टूरिस्ट गो होम, कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो भागो यहां से, तो उस चीज को मैंने कोट जब किया तो मैंने डबल इन्वर्ट कॉमास जो बाहर रखे उसके अंदर सिंगल इन्वर्ट कॉमास यूज किए। ठीक है, रूल नंबर 4। यस। इसके बाद ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन अ कंप्लीट कोटेशन इवन इफ द इट इज इन द मिडिल। मतलब कि जब हम किसी को कोट करते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वर्ड का वो हर समय कैपिटल में होता है, भले ही वो सेंटेंस के बीच। जैसे मान लो मैंने बोला कि बिल सेड दैट, सॉरी दैट नहीं आएगा इसके अंदर, बिल सेड कॉमा दैट जॉब स्टार्टेड लास्ट अप्रैल इज डन, तो ये बिल ने ऐसा वर्ड टू वर्ड बोला। तो जब मैंने बिल को कोट किया, भले ही मेरे सेंटेंस के बीच में दैट है, लेकिन पहला इसका लेटर हर समय कैपिटल होता है। ये हो गया रूल नंबर 5। अब आता है रूल नंबर 6, कोटेशन मार्क्स आर ऑफन यूज्ड विद टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि तुम अभी वो पूरा चैप्टर, आखिरी वाला चैप्टर याद कर रही हो ना, सर जार्गन्स। जार्गन्स, तो उसमें सारी चीजें क्या है एक्चुअली, वो फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म्स है ना? यस सर। तो फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ना है तो तुमको वो याद होने ही चाहिए, और आगे चल के तुमको उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह है ना, ये सब चीजें आगे सब इसमें डील करना है। तो जब भी हम ऐसा कोई टर्म यूज करते हैं तो हर समय वो इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं। ये देखो, यस, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन का एक टेक्निकल टर्म, ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी तेल निकालने का तरीका। ठीक है, अब आता है क्या? अब तो ये इन्वर्टेड कॉमास के रूल समझ में आ गए? यस सर। है ना? टोटल मिला के रिवाइज करते हैं। पहला कि हम किसी को जब कोट करते हैं तब हम यूज करते हैं तो ही सेड के बाद कॉमा लगा दो और उसके बाद इन्वर्ट कॉमास लगा दो। ठीक है ना, दैट नहीं बोलते। सेकंड क्या है कि किसी भी चीज का टाइटल हम यूज करते हैं तो उसको भी इन्वर्ट कॉमास में लिख सकते हैं। थर्ड क्या है कि जो कॉमास और पीरियड्स जो हैं यानी कि फुल स्टॉप, वो हर समय इनसाइड जाते हैं ऑफ इन्वर्ट कॉमास। और उसके बाद क्या है कि सिंगल, अगर हम कोटेशन के अंदर भी किसी को कोट कर रहे हैं तो हर समय सिंगल कोटेशन मार्क्स या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। फिर पहला जो लेटर होता है वो हर समय कैपिटल होता है, कैपिटल। हाँ। यस सर। अपन कोई टेक्निकल वर्ड या जार्गन यूज करते हैं तो वो इन्वर्ट कॉमास में जाता है। तो ये हो गए कोटेशन मार्क। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कॉमास में। कॉमा कहाँ यूज किया जाता है, इसके भी कुछ रूल्स है ना? ये तो यहाँ अपन समझ लेंगे और तुम्हारी बुक से हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हो जाएंगी और मेरे नोट्स भी देख लेंगे, सब चीजें आराम समझ में आ जाएंगी। अब आए रूल नंबर, इसके 3 रूल है छोटे छोटे से। यूज अ कॉमा टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन अ सीरीज, है ना? कि मैंने जैसे एक ही सेंटेंस के अंदर तो अलग अलग उसको बताने के लिए मुझे कॉमा यूज करना पड़ेगा। जैसे ही हिट द बॉल, ड्रॉप द बैट एंड रन टू द थर्ड बेस, यानी उसने बॉल को पहले हिट किया बल्ले से, फिर उसको अपने बल्ले को नीचे फेंका और रन बनाने के लिए दौड़ा। तो ये 3 चीजें हुई। अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगा तो पढ़ने वाले को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं।
पर जब मैं ये कॉमा लगा देता हूं तो मेरे को ये 3-4 चीजें अलग अलग करके बताने में आसानी होती है और पढ़ने वाले को भी समझने में आसानी होती है। समझ में आ गया? यस सर। जब हमको कोई चीज अलग अलग करके समझानी है तो उसके बीच में कॉमा लगाते हैं, सिंपल सा। यूज अ कॉमा प्लस अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या था? दो चीजों को ऐड करने का तरीका, एंड, यस सर। और, नॉर, अभी हम देखा ना। तो यूज अ कॉमा प्लस कंजंक्शन टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जैसे ही हिट द बॉल हार्ड। बट क्या है? कंजंक्शन। फेल व्हेन ही स्टार्टेड टू रन। तो हमने कॉमा के साथ एक कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब कि हम इसका दो अलग अलग भी वो कर सकते थे, है ना? तो हमने इसके लिए हमने ये कर लिया। थर्ड, यूज अ कॉमा बिफोर यू इंट्रोड्यूस अ कोट। अभी हमने देखा था ना कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क के पहले हमने क्या किया था कि ही सेड, कॉमा लगाए थे ना, करेक्ट क्या था ये, ही सेड पहले कर सकते हैं ना, ही सेड, और ये पूरा कोट कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। वही ये बताया गया है कि हर समय कोटेशन के मार्क के पहले एक कॉमा लगेगा। यूज अ कॉमा बिफोर यू इंट्रोड्यूस अ कोट। जैसे फॉर एग्जांपल पीटर राइट्स, और ये उसने पूरा बोला, ये पूरा उसने इनवर्ट कॉमास में एज इट इज कोट कर दिया। तो हम लोग कोटेशन मार्क इसलिए यूज करते हैं कि सामने वाले ने एज इट इज, मतलब जैसा बोला वैसे का वैसा कोट किया, ठीक है ना? यस सर। कभी कभी मैंने अभी देखा कि जैसे अब्दुल कलाम जी को अभी कोट किया, डॉक्टर एपीजे कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनने जो सेंटेंस बनाया था वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है तो हम उनको एज इट इज कोट कर दिया, राइट? तो किसी ने जैसा बोला वैसे का वैसा कोट करने के लिए इन्वर्ट कॉमास यूज करते हैं, और उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? एक कॉमा। ये रहा कॉमा। यस सर। ये अब हम कॉमास और कॉमा का मतलब समझ में आ गया, और ये भी पंक्चुएशन का पार्ट है। अब हम आते हैं सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन क्या होता है? कॉमा के ऊपर एक बिंदी लगती है ना, जैसे ये देखो साइड में दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना? सर वेयर? ये देखो मेरा ये कर्सर दिख रहा है राइट साइड, कर्सर नो सर। नहीं दिख रहा? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। A semicolon can replace a period if the writer wishes to narrow the gap between two closely linked sentences. तो हम एक्चुअली सेमीकोलन को फुल स्टॉप की जगह यूज करते हैं ताकि सेंटेंस की एक प्रकार से निरंतरता बनी रहे, लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग सेंटेंस दिखाई दे। कैसे? कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी योर आंसर देन। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस भी बन सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, बीच में सेमीकोलन लगा के उसकी निरंतरता बनी रही। पेड आवर ड्यूज, वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेमीकोलन लगा दिया फुल स्टॉप की जगह, है ना, और दो सेंटेंस को बनने से रोक लिया। तो यूज अ सेमीकोलन बिफोर वर्ड्स एंड टर्म्स लाइक नेमली, हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल। तो इसके पहले यूज अ सेमीकोलन बिफोर दीज वर्ड्स, तो ये तो इसके अंदर एक रूल है, ये लिखा हुआ है। एंड ब्रिंग एनी टू आइटम्स, जैसे ब्रिंग एनी टू आइटम्स, हाउएवर स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। हाँ ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। यूज अ सेमीकोलन टू सेपरेट यूनिट ऑफ सीरीज। अब जैसे मैंने तीन चीजों के बारे में बात की, ठीक है, और तीन चीजों के साथ भी दो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन तीनों चीजों को अलग करने के लिए क्या यूज करूंगा? सेमीकोलन। सेमीकोलन। मॉस्को इडाहो एक जैसी चीज है, स्प्रिंगफील्ड कैलिफोर्निया दूसरी जैसी चीज है, तो इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया, लेकिन इसके बाद में सेमीकोलन लगा दिया। फिर एल्मानो टेनेसी एक जैसी चीज है, तो यूज अ सेमीकोलन टू सेपरेट, यूज अ सेमीकोलन टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ अ सीरीज व्हेन वन और मोर यूनिट्स कंटेन कॉमा। मतलब एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए कॉमा यूज कर रहे हैं, और अलग अलग यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। सेमीकोलन। यस सर। तो तुम इसको जैसे जैसे यूज करोगे तो तुमको और क्लियर होता जाएगा। तो छोटी चीज है कि हम लोग सेमीकोलन को इसलिए यूज करते हैं ताकि फुल स्टॉप ना यूज करें, लेकिन हम लोग सेंटेंस को कंटिन्यू करके रखते हैं, ठीक है ना। और अगर एक जैसी चीजें हैं और उनको हमको डिफाइन करना है, और जो एक जैसी चीजें उसके अंदर भी सब कैटेगरीज में है चीजें,
तो सबको बीच में डिफरेंस बताने के लिए हम लोग सेमीकोलन यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये जो मैं हाईलाइट किया हुआ है वो, ठीक है। यस सर। सेमीकोलन के बाद आता है कोलन। कोलन क्या होता है? कोलन मतलब कि ये दो बिंदु, जैसे ये देखो रूल नंबर 1 के बाद जो दो बिंदु लगे ना, इन्हें कहते हैं कोलन, ठीक है। यूज अ कोलन टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ आइटम्स, डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कोलन, ठीक है। यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेनी थिंग्स। अब जैसे कि एक सेंटेंस है कि आपको ये सारी चीजें लेके आनी है, और थिंग्स के बाद मेरे को जो बताना था उसके लिए मैंने कोलन यूज किया। थिंग्स क्या है? स्लीपिंग बैग्स, पैन्स, यूटेंसिल्स, वॉर्म। तो बोलते हैं ना कि द फॉलोइंग थिंग्स, कि दीज आर एज फॉलोज, उसके बाद कोलन लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं 1 2 3 4, ऐसे करते हैं ना कि देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री व्हिच आर एज फॉलोज, कोलन 1 यस। तो ऐसे करके हम उन चीजों को डिफाइन करने के पहले ये लगा देते हैं कोलन। अब रूल नंबर 2, कोलन रादर देन अ कॉमा टू फॉलो द सैल्यूटेशन इन अ बिजनेस लेटर। हमने जो बिजनेस लेटर लिखा था ना, यस सर, तो हम लोग क्या करते हैं, डियर सर या डियर मिस्टर रवि प्रकाश, तो अगर हमने डियर सर के बाद कोलन लगा दिया तो ये बन जाता है फॉर्मल, है ना, एकदम हमको फॉर्मेलिटी रखनी है तो कोलन लगा सकते हैं। अगर डियर मिस्टर डेव लिखे तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है आज की डेट, यस सर, है ना। जैसे बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली हम लोग एक बंदे को नहीं जानते और फॉर्मल हमारा एक लेटर जा रहा है, तो हम आज की डेट में क्या करते हैं, कॉमा नहीं लगाते कि डियर मिस्टर सो एंड सो, इसकी जगह हम क्या करते हैं, कोलन लगा देते हैं, डियर मिस्टर सो एंड सो। यस सर, ठीक है ना। तो ये आज का नया तरीका निकला है। तो सबसे पहला क्या है कि हम कोई सीरीज डिफाइन करते हैं कि दीज आर एज फॉलोज, उसमें कोलन लगाते हैं, और दूसरा जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हम कोलन लगा के ये बताते हैं कि ये फॉर्मल लेटर है। अगर हम कॉमा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनफॉर्मल, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सिंपल है ना? यस सर, ठीक है। हाँ, अब अवॉइड यूजिंग अ कोलन बिफोर अ लिस्ट व्हेन इट डायरेक्टली फॉलोज अ वर्ब और अ प्रपोजिशन। इनकरेक्ट क्या है, आई हैव सीन द ग्रेट्स इंक्लूडिंग, I've seen the greats including Barrymore. हाँ, avoid using colon before a list when it directly follows a verb, including. तो यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग, इंक्लूडिंग के बाद ये कोलन लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये क्या है, when it directly follows a verb or a proposition। अगर proposition यूज किया है जैसे इंक्लूडिंग वगैरह, तो इसके बाद जो है वो कोलन नहीं लगाना चाहिए। तो ये बता रहा है, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि उन चीजों को पकड़ के रखें। सबसे पहले हमने देखा कोटेशन मार्क्स, इसके बाद हमने देखा कॉमा, इसके बाद हमने देखा सेमीकोलन, इसके बाद हमने देखा कोलन। अब हम आते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स, लेकिन ये होता है पैरेंथेसिस, है ना। ये जो होता है ना, ये ऐसे वाला, ये ब्रैकेट नहीं है, ये पैरेंथेसिस, ठीक है। यूज अ पैरेंथेसिस टू एनक्लोज इंफॉर्मेशन दैट क्लैरिफाइज, मतलब कि हमने जैसे मान लो कोई चीज को क्लियर करना है, और ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? यस सर। कोई एक सेंटेंस लिखा, उसमें टर्म यूज किया, और टर्म को क्लियर करना है या उसका मीनिंग बताना है, तो उस टर्म के बाद, जैसे मान लो ये टर्म है आंसर्ड, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पैरेंथेसिस यूज करके उसको और उसके बारे में अधिक जानकारी दे दूंगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, है ना, या फिर उसको डिफाइन कर दूंगा। यस सर। सेंटेंस में अलग से ये, मतलब इसका एक अलग से वो हो जाता है कि वो आपने और ज्यादा उसको क्लैरिफाई कर दिया। तो पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू एनक्लोज इंफॉर्मेशन दैट क्लैरिफाइज समथिंग, उसके बारे में अधिक जानकारी देता है। इफ मटीरियल इन पैरेंथेसिस एंड्स इन अ सेंटेंस, द पीरियड गोज इनसाइड। हाँ, if a material in parenthesis ends a sentence, ठीक है, then the period goes। हाँ, अगर मान लो कि ये parenthesis लास्ट में लगा है तो पीरियड यानी फुल स्टॉप का मार्क जो होगा उसके बाहर जाएगा। यस सर। If a material in parenthesis ends a sentence, मतलब कि अगर आपने इसको ऐसा प्रयोग किया है जो कि सेंटेंस के एंड में आ रहा है,
then the period goes after the parenthesis, यानी कि जो फुल स्टॉप का मार्क है वो लास्ट में आएगा parenthesis के बाद. Commas are more likely to follow parenthesis than precede them, यानी कि जो कॉमा होता है वो parenthesis के पहले नहीं लगता, parenthesis के बाद लगता है. जैसे कि ये देखो ग्रीन वाला, तो करेक्ट क्या है? When he got home it was already dark outside. तो ये क्या किया हमने? एक्सप्लेन कर दिया कि when he got home, तो हमने अलग से डिफाइन कर दिया कि ऑलरेडी इट वाज डार्क. और उसके बाद कॉमा कहाँ लग रहा है? पैरेंथेसिस के बाद में, पहले नहीं लगता, पैरेंथेसिस के बाद. ठीक है. अब फोर्थ रूल क्या है? पीरियड्स गो इनसाइड द पैरेंथेसिस ओनली इफ द एंटायर सेंटेंस इज इनसाइड द पैरेंथेसिस. हाँ, अगर पूरा का पूरा सेंटेंस पैरेंथेसिस के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर है यू विल बी अमेज्ड, तो पीरियड उसके अंदर जाता है. यस सर. ठीक है. लेकिन अगर पूरा सेंटेंस, और यदि पैरेंथेसिस एक पूरे सेंटेंस का पार्ट है, यानी कि अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, उस सेंटेंस का एक पार्ट है, तो हर समय पीरियड उसके बाहर जाएगा. यस सर. जैसे कि यहाँ था $500 में भी ऐसे था ना, पीरियड बाहर गया. यहाँ पर भी वो एक सेंटेंस का पार्ट है, पूरे सेंटेंस नहीं है, इसलिए पीरियड कहाँ जाएगा? बाहर, यानी फुल स्टॉप बाहर. ठीक है ना. तो अब हमने देख लिया पैरेंथेसिस और देख लिया. अब हम देखते हैं और क्या बचा. अब आते हैं ब्रैकेट पे. सब लोग गलत बोलते हैं, इसको हर समय ब्रैकेट बोलते हैं और इसको कुछ भी नहीं बोलते, पर ये ब्रैकेट होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना. अब ब्रैकेट के बारे में है. इसके बाद क्या है? अपॉस्ट्रोफी, फिर लास्ट. तो हमारा पंक्चुएशन आज खत्म हो जाएगा. अब हम आते हैं ब्रैकेट पे. ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट्स आर इंटरप्शंस. व्हेन वी सी देम वी नो दे हैव बीन एडेड बाय समवन एल्स. ठीक है. एक्सप्लेन और कमेंट ऑन द कोटेशन. फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोट कर रहा हूं, लेकिन उस कोटेशन के ऊपर भी मुझको कोई एक कमेंट देना है ना. जैसे कि मान लो मैंने डॉक्टर एपीजे कलाम को कोट किया, लेकिन उनके कोट मुझको अपना कमेंट देना है, तो उसके लिए मैं हर समय ब्रैकेट यूज करता हूं. फॉर एग्जांपल देखो 4 स्कोर एंड 7. अब ये ओल्ड इंग्लिश है. ओल्ड इंग्लिश क्या है? 4 स्कोर. स्कोर क्या होता है? जैसे डजन. डजन क्या होता है? क्वांटिटी. हाँ, 12 होता है ना. हाँ, यस सर, 12. तो स्कोर क्या होता है? 20, 20. यस सर. है ना. अब ये बोल रहा है 4 स्कोर, यानी स्कोर यानी 20 इंटू 4 कितना हुआ? 80. एंड 7 कितना हुआ? 87. तो पुराने जमाने में 87 को कैसे लिखते थे? 4 स्कोर एंड 7. तो इसको मेरे को एक्सप्लेन कर. मैंने क्या किया? टुडे वी से 87. तो पुराना मैंने एक कोट लिया. पुराना कोट क्या था? 4 स्कोर एंड 7 years ago. लेकिन उसको मेरे को कमेंट करके एक्सप्लेन करना था, तो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया. यस सर. तो समझ में आ गया ना कि मेरे को मान लो किसी को कोट करना है, लेकिन उस कोट के ऊपर एक कमेंट करना है, तो मैं कोटेशन तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज इट इज है, किसी के वर्ड्स हैं. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उस पर कमेंट करने के लिए व्हाट डू आई यूज? आई यूज ब्रैकेट्स. हाँ. तो बिल शुक हैंड्स विद एल, ये अपने आप में एक सेंटेंस है. सेंटेंस क्या था? बिल शुक हैंड्स विद एल. तो ये कोटेशन मार्क्स का है. ये थोड़ा ये कोटेशन मार्क गलत लग गया. बिल शुक हैंड्स. अब मेरे को इसके अंदर अपना कुछ कमेंट डालना है, तो मैंने क्या यूज किया? ब्रैकेट. हिज सन, है ना. एल हिज सन. ठीक है ना. अब रूल नंबर 1, व्हेन कोटिंग समथिंग that has a spelling or grammar mistake or presents material in a confusing way, insert the same term sic, which is thus in Latin. ठीक है. In italics and enclose it in bracket. ठीक है. अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैंने एक कोटेशन बताया था जिसमें डॉक्टर एपीजे कलाम ने कोट किया, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था. बोला था ना अभी. यस. तो यस सर. अगर मान लीजिए मैं किसी को कोट कर रहा हूं, लेकिन वो कोटेशन अपने आप में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो लोग सोचेंगे कि मैंने गलत कोटेशन कर दिया. तो ये बताने के लिए कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया है, बंदे ने ही ऐसा बोला है, तो मैं क्या करूंगा? ये सिक यूज कर लूंगा, SIC, जिसका क्या मतलब? 10 इन लैटिन. समझ में आ गई बात? यस सर. अगर मान लो किसी ने, मान लो सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी, इनने कोई कोटेशन दिया. कोटेशन मतलब कि उनने बोला,
और मैं इनको एज इट इज Yes. कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो सोचेंगे कि यार ये जो लिखने वाला है वो इनकरेक्ट है, गांधी जी ने सही बोला। तो ये बताने के लिए कि मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के अंदर SIC लिख के उसके बाजू में रख देता हूं, बीच में रख देता हूं। तो इससे पता चलता है कि ये जो Yes. ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये बोलने वाले की है, मेरी नहीं है। बात समझ में आ गई ना? Sir, so sick is used only when we know that there is a grammatical mistake. यस। सो इसका क्या मतलब है, Okay. ये लिखा है रूल नंबर 1, व्हेन कोडिंग समथिंग दैट हैज अ स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक or presents material in a confusing way, insert the term sick, which is thus in Latin, in italics and close it in bracket. मतलब इसको इटैलिक्स में डाल के ब्रैकेट में डाल दो। इसका मतलब ये होता है कि गलती जो है वो बोलने वाले की है, मेरी नहीं है। Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, बस ये तो तक क्लियर है, और इसका और कुछ है ही नहीं। बस इसमें आपको एक बार लॉजिक याद हो गया तो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई समझ में अभी तक जो समझा है? No, sir. ठीक है, No, sir. आते हैं हम ब्रैकेट्स कंटिन्यू। इन फॉर्मल राइटिंग ब्रैकेट्स आर ऑफन यूज्ड टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ बोथ कोटेशन एंड द सेंटेंस। अब जैसे मान लो, Sir, bracket continue is also punctuation mark. हाँ ये मतलब ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट इसी का और आगे चल रहा है। Yes. अच्छा, okay, sir. है ना, ये रूल नंबर 1 था, Okay, sir. अभी रूल नंबर 2 है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, इन फॉर्मल राइटिंग द ब्रैकेट्स आर ऑफन यूज्ड to maintain the integrity of both a quotation and the sentences. Others use it in the better angels of our nature. जैसे मान लो किसी ने कोई मिस्टेक करी है ना, और वो भी कोटेशन में, उसको आपको करेक्ट करना है, तो भी आप ब्रैकेट ऐसे यूज कर सकते हो। समझ गए? Yes, sir. तो इस बंदे ने लिखा था ही, होना चाहिए था द, लेकिन अब उसने जो बोला हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, तो वो Yes. रिपेयर कर दिया मैंने, यहाँ इस वर्ड को रिपेयर कर दिया और मैंने क्या यूज किया, Yes, sir. ब्रैकेट। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये भी इसकी है। तो यहाँ तक अभी सब हो गया क्लियर। अब हम आखिरी पे आते हैं, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, है ना। अब जैसे अपोस्ट्रोफी यूज किया क्यों किया जाता है, किसी का बताने के लिए, दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, है ना, तो अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। यूज एन अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर नाम, मतलब कि ये किसका है। Yes, sir. अब जैसे द बसेस येलो पेंट बिगैन टू चिप ऑफ, मतलब बस का जो येलो पेंट था वो उखड़ रहा था। हाँ, yes, sir. जनरली यू डू नॉट यूज एन अपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल। सर जैसे इन्वर्टेड कॉमास में दोनों साइड यूज होता है इन्वर्टेड कॉमास, तो इसमें ऐसा नहीं होता, ओनली सिंगल साइडेड अपोस्ट्रोफी? नहीं, अब हर समय सिंगल ही होता है। जैसे नेहाज बुक है ना, तो मैं नेहाज बुक मतलब नेहा की किताब, तो कैसे लिखूंगा, नेहा अपोस्ट्रोफी एस बुक। अच्छा, यस सर। है ना, नेहाज बुक, नेहाज बैग, नेहाज कॉपी, तो NEHA अपोस्ट्रोफी S कॉपी, तो नेहा का मतलब दिस बिलोंग्स टू दिस। हाँ सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस साइन? सर टू एक जगह पे सर 2 बार वो ऐसे घुमा हुआ है और एक बार बस के बाद बस एक बार है। सर लाइक यूज एन अपोस्ट्रोफी प्लस और फिर एस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में एनकोड है ना? यूज एन अपोस्ट्रोफी प्लस दिस थिंग। Yes sir. What is this sign called that in which as is enclosed? This one? No sir, in the first line. S. ये वाला? सर इससे थोड़ा ऊपर। Yes sir, this one. Sir, these are the apostrophe sign. हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये तो उसने उसको वो किया है, ये है अपोस्ट्रोफी। ओके सर। है ना, ये अपोस्ट्रोफी साइन है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? Yes.
हाँ, तो फिर सर वो वाला साइन कौन सा जिसके अंदर एस को एनक्लोज किया है? ये डबल इन्वर्ट कॉमास है। अच्छा, डबल एन, हाँ ओके सर। जैसे मेरे को मान लो कोई पर्टिकुलर चीज को कोट करना है ना, जैसे मेरे को इसके बारे में, एस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने डबल इन्वर्ट कॉमास यूज कर लिया, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एस के बारे में। हाँ ओके सर, यही पूछ रही थी। लेकिन अपोस्ट्रोफिक जो मैं अभी पंक्चुएशन मार्क की बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये है, नेहास पेन, बसेस येलो, बस का, नेहा का येलो पेंट उखड़ रहा है ना। यस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ, इस समय क्या बोल रहा है कि एक बस का येलो पेंट निकला, तो मैंने लिखा था बसेस येलो पेंट बिगन टू चिप ऑफ। अगर मेरे को ये बोलना है कि 10 बस का निकला, तो मैं क्या करूंगा, द बसेस, तो बसेस की जगह क्या करता हूं, फिर मैं लास्ट में एस नहीं लगाता, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूं, है ना। यस सर। अब जैसे मान लो द विल्सन्स आर हियर, अब ये तो इसको छोड़ दो, तो वो मैं तुमको, वो तुम देख लेना उसको एक बार। तो अपोस्ट्रोफी हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी उसके बाद सिर्फ, एक मिनट, ये क्या है, अपोस्ट्रोफी फिर हम एक लगा के छोड़ देते हैं, एस नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। अब जैसे मैं एक मिनट इसको भी गूगल पे समझा दूंगा, है ना, एक मिनट, आई विल गो बैक, जस्ट एक्सप्लेन यू ऑन गूगल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। तो पंक्चुएशन मार्क्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस रीजंस एंड हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड हु इज स्पीकिंग, है ना। जैसे रामा सेड, फिर मैंने कोटेशन मार्क लगा दिया, तो मेरे को मालूम है कि ये कोटेशन किसका है, रामा का है। तो हु इज स्पीकिंग हमको कौन बताता है, पंक्चुएशन मार्क्स। देन इन व्हाट टोन दे आर स्पीकिंग इन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें पंक्चुएशन में आती हैं। उसके बाद वेयर द पॉजेज आर, ये कॉमा बताता है, एंड इज इट अ इंटरनल डायलॉग और अ साइड नोट। तो ये सारी चीजें, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें जो है ये हमको क्लियर करती है। तो इसमें हमने मोटी मोटी चीजें पकड़ ली है सब। तुम्हारा जो पंक्चुएशन जो टेक्स्ट बुक में है तुम उससे मिलाना, है ना। इसके बाद तुम सीधे सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क ही पढ़ना, तो तुमको सारी चीजें और चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। और उसमें कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे है ना, ऐसे ही करके हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड लेंगे, और मेरे पास सारी स्लाइड्स हैं इसकी, क्या बोलते हैं,